Good evening, everyone. My name is Prarthi Kothari, and I will be the host for today's session. And it is my pleasure to welcome you all to the 50th session of Beyond Research, where curiosity meets conversation, our students' networking and journal club program. Today we are honored to have Dr. Divyanshu Mishra as our distinguished speaker. Dr. Mishra brings over 2 years of experience as a tutor, prompt writer, and AI trainer, having worked with renowned organizations such as Outliers AI and TELUS International. He has contributed to numerous projects, leveraging his expertise to generate innovative ideas and strategies that enhance processes and foster effective team dynamics in multidisciplinary environments. In addition to his professional achievements, Dr. Mishra holds a diploma in scientific writing, further enriching his ability to communicate complex concepts clearly and effectively. His diverse background as a freelancer has been both rewarding and productive, making him well equipped to share valuable insights with us today. Please join me in warmly welcoming Dr. Divyanshu Mishra. Thank you, ma'am, for such a warm welcome. I'm really glad to hear all this about me. Hello, am I audible, ma'am? Yes, you are. Okay, ma'am. So I'll share my screen and we should start. I hope so. Hello to everybody here. Is my screen visible? Yeah, your screen is visible. Okay. So, uh, as you all know, my name is Divyanshu Mishra. So I have done MBBS and I have done a diploma course of scientific writing at Sorry to University of interrupt you, Dr. Divyanshu, but your screen has like completely gone black. Okay, just a second. So now is it visible? Yeah, but it's like, could you just switch on the rotation in your Yeah, device? yeah, 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 ma'am. that's better. Okay. Yeah. So, yeah. So, my journey is I have been a state head researcher at GAIMS, and I have published around a total of 20 paper till now. Uh, so, I started this during healthcare crisis, COVID-19, you all know. So that was the time that I knew that knowledge sharing literally saves life. So we will start with understanding the scientific writing. Scientific writing in healthcare is not just about publishing papers. It is a structured way of sharing everything from printed copies to handwritten notes to innovation or and any clinical practice. It includes many things from research paper, clinical case report, systemic review. So this helps in clarity, honesty, and evidence. And also, every peer review system, a paper is reviewed by several peers, so which helps us to acknowledge that the evidence is true or not. Now, the question is why scientific writing matters. तो दिस काइंड ऑफ राइटिंग जो है एसेंशियल है कि हम नॉलेज को बढ़ाएं और जो एरर्स आ रही है या एविडेंस बेस्ड डिसीजन है वो ले सकें। ठीक है, कोई भी कोई भी हॉस्पिटल है, लैब है, तो या कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो वो जो भी डाटा प्रोसेस करता है, एक्सेस करता है, उसको पब्लिश करता है। ठीक है, जिससे कि बाकी लोग उस डाटा को यूज करके और आगे रिसर्च कर सकें। ठीक है, so that's why scientific writing is important to highlight the gaps in our understanding and spark further researches. See, Uh, how scientific industry leverages scientific industry कैसे काम करती है? So देखो होता क्या है, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ टेक स्टार्टअप है, जैसे अभी इंडिया में खूब चल रहा है, ट्राया हो गया, वेलबींग न्यूट्रिशन हो गया, ये सारे साइंटिफिक राइटिंग करते हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए।
ठीक है। तो दे डू क्लिनिकल ट्रायल्स एंड दे ड्राफ्ट हेल्थ केयर पॉलिसीज, रिसर्च करते हैं टू टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी अराउंड द प्रोडक्ट। तो दे रिक्वायर अ साइंटिफिक राइटर to write their research papers and to publish them on their name. So this is how you will get paid. This is how money flows in scientific writing. So how your growth will happen in scientific writing is, first of all, we'll see how this helps you in gaining knowledge. It enhances your critical thinking and open doors for fellowship or PG programs. And also, it's a good way to start any conversation and everything. So, uh, mm, I'll be getting to how scientific writing actually, basics of scientific writing. So, just a second. Hmm. So, let's jump to the basics of scientific writing. तो देखो, साइंटिफिक राइटिंग क्या है, एक सिंपल और पावरफुल टूल है। ठीक है। जैसे उसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। ठीक है। वो क्या होता है कि जो भी आप मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हो, जो जो भी आप पेपर लिखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक राइटिंग में, उसी को हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट कुछ नहीं है, कॉम्पोजिशन रिटन बाय हैंड और टाइप। अगर आप कंप्यूटर में टाइप करके लिख रहे हो या हैंड से लिख रहे हो, उसी को हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। ठीक है। वो है कुछ नहीं, आपका पेपर ही है जिस पे आप लिख रहे हो सारी चीजें। ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स क्या है, एक सिंपल और पावरफुल टूल है जो रिसर्च राइटिंग को एक अच्छा स्ट्रक्चर और इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। ठीक है। तो इस सेशन में मेजोरिटी हम यही सीखेंगे कि आइडियाज एंड लॉजिक जो है कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं साइंटिफिक पेपर में, कैसे वो फ्लो करते हैं, क्या उनका तरीका होता है, जो उनका फ्लो कैसा होगा कि मैक्सिमम नॉलेज जो है वो ट्रांसफर हो। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सेशंस आर to understand IMRAD structure. अभी IMRAD structure is, we divide the manuscript जो हम पेपर लिख रहे हैं उसे हम we divide it in 4 parts. First is introduction, second is methods, third is results, and fourth is discussion. Okay. So starting points of manuscript जो भी है, तो प्रोडक्ट ऑफ मेन्यूस्क्रिप्ट हो गया, उसमें टेबल्स एंड फिगर्स आते हैं, की पॉइंट्स एंड रिकमेंडेशंस होते हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट्स आते हैं, एंड आउटलाइन Excuse में me, Dr. स्लाइड। Divyanshu. यस मैम। Are you changing your slides? यस मैम। Are you changing your slides or are you still on the first slide? Just wanted to confirm because I think your screen is freezed. ओके, सॉरी मैम, आई वाज चेंजिंग माय स्लाइड्स बट आई डोंट थिंक दैट Yeah, इट yeah, no वाज। issues. Right now I can see the objectives of the session. That's right, right? यस यस मैम। All right. So okay, so jumping on objective of the session, so understanding the IMRDA structure. So introduction, methods, result, and discussion. This is how the ideas flow in your research paper or your manuscript. ठीक है. You identify and organize the key ideas logically within the manuscript. ठीक है. Use a argument matrix to structure flow of idea and content. और मेजोरिटी देखेंगे, कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम जो अवॉइड करना है, मतलब रिसर्च को एक अच्छी स्टोरी की तरह लिखना है हमें। ठीक है। जिसमें हर पार्ट को प्रॉपर प्लेस देना चाहिए। इफ वी गो टू सी अ मूवी, अगर क्लाइमेक्स ही हम पहले देख लें तो मूवी का मजा नहीं है। तो क्लाइमेक्स आखिरी में आता है। ऐसे ही जो अपना डिस्कशन है या रिजल्ट है वो बाद में आएगा। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर मेथड्स डालेंगे, फिर रिजल्ट देंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि कैसा था पेपर। ठीक है। तो नेक्स्ट वी कम टू कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो कभी टेबल्स, कभी फिगर्स या एब्स्ट्रैक्ट जो भी होता है, उसको हम, मतलब ये चीजें हमारे पास पहले से होती हैं कि हमें
किस पे लिखना है। अगर हमें वैक्सीन डेवलपमेंट पे पेपर लिखना है तो हमें वो आउटलाइन पता रहती है कि अच्छा मलेरिया के लिए अगर वैक्सीन आ रही है, डेंगू के लिए वैक्सीन आ रही है, तो वी नो कि ये इतनी ये वैक्सीन है, इतने टाइम में देनी है, ये करना है। अब हमें आगे रिसर्च करना है कि वो वैक्सीन कब तक काम कर रही है या क्या कर रही है। सो that's how we'll prepare the idea of the writing कि first we'll start कि अच्छा it's about malaria vaccine, मलेरिया मलेरिया के बारे में थोड़ा बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसकी वैक्सीन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसकी मेथड्स और टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे हम कि कैसे कैसे वो वैक्सीन जो है वर्क करती है, क्या करती है। फिर रिजल्ट्स बताएंगे कि कब तक ये वो वैक्सीन वर्क कर रही है, उसमें बूस्टर डोज देने की जरूरत है या नहीं है। क्या हम हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारे हिसाब से जो हमने रिसर्च कंडक्ट की उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं जो चेंज करके हम अचीव कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट, बेटर रिजल्ट। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स हमारा क्या करता है, रॉ डाटा को मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्ड पेपर में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब चलते हैं कि कॉमन रोड ब्लॉक्स क्या आते हैं इसमें। ठीक है, कॉमन रोड ब्लॉक्स जो आएंगे, देखो राइटिंग में कॉमन इश्यूज दो टाइप के ही होते हैं। या तो स्ट्रक्चर इशू आएंगे, सेक्शन का ऑर्डर या कंटेंट जो है वो गलत है। ठीक है। या आइडिया के फ्लो में इशू आ रहा है कि बात इनकम्प्लीट रह गई या कोई बात ही स्किप हो गई अपने से, या आइडिया इज मिस्ड। तो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स हेल्प्स इन सॉल्विंग बोथ द प्रॉब्लम्स बाय गिविंग अ क्लियर फ्रेमवर्क। ठीक है। अभी देखते हैं अपन IMRAD स्ट्रक्चर, जो मेन है, जो मेन पॉइंट है आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स का। तो अ, जो IMRAD स्ट्रक्चर है, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स, वो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो ब्रैडफर्ड हिल इज अ साइंटिस्ट, तो उन्होंने बताया, उन्होंने ही ये फॉर्मूला दिया था IMRAD का कि हाउ दिस स्ट्रक्चर्स वर्क एंड व्हाट दिस थिंग says about itself. ठीक है। सो इंट्रोडक्शन सेक्शन इज व्हाई वाज द स्टडी डन, जो स्टडी हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अगर वो वैक्सीन डेवलपमेंट है या हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर है या फिर रेटिनॉइड्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर है, तो अगर कुछ भी है वो, तो हम क्यों कर रहे हैं वो स्टडी, मेन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। दैट्स व्हाट्स आवर इंट्रोडक्शन इज अबाउट। मेथड्स पे आते हैं तो हाउ इट वाज डन। तो अगर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स है तो दो ग्रुप लिए, दोनों ग्रुप को कैसे कैसे हमने बांटा था, और कितने पेशेंट्स थे, क्या हमारा प्रिकॉशंस लिए गए थे, क्या क्या पेशेंट्स के साथ। तो एवरीथिंग अबाउट दैट। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो फॉर रिजल्ट सेक्शन विल सी व्हाट वाज फाउंड, जो रिजल्ट था क्या रिजल्ट आया है, एंड डिस्कशन व्हाट डज इट मीन, मतलब उसका क्या मतलब है। तो ये फॉर्मेट ग्लोबली एक्सेप्टेड है। हर सेक्शन का एक स्पेसिफिक रोल होता है। ठीक है। तो जंपिंग टू द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज इंट्रोडक्शन सेक्शन। इंट्रोडक्शन जो है ब्रॉड टॉपिक से शुरू होता है और ग्रेजुअली नैरो होता रहता है विद स्पेसिफिक रिसर्च के। ठीक है। देखो, आपको बताना होता है कि ये स्टडी जरूरी क्यों है, और एंड में ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डिप्थीरिया बूस्टर्स, है ना, डिप्थीरिया बूस्टर्स डोजेस के लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना। कि देखो इंडिया में मेन ट्रेंड क्या है कि लोग वैक्सीन लेते हैं लेकिन बूस्टर्स नहीं लेते हैं। मुश्किल से आउट ऑफ अगर 100% लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो 10 to 20% लोग ही हैं जो बूस्टर ले रहे हैं। सो वी डिड अ रिसर्च कि डिप्थीरिया बूस्टर्स के लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस को क्या क्या है, तो और क्यों लेना चाहिए, कि बूस्टर वैक्सीन क्यों जरूरी है डिप्थीरिया से फाइट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो वी कैन स्टार्ट लाइक डिप्थीरिया इज द
सेवेंथ मोस्ट किलिंग डिसीज इन द वर्ल्ड या जो भी है, आई एम नॉट क्वाइट फेमिलियर विद विच रैंक डिप्थीरिया है। लेकिन हाँ, ऐसे ही स्टार्ट होता है रिसर्च पेपर कि ये डिसीज है, ये इतने लोगों की मोटेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, ये सारी चीजें हमें बतानी होती है। फिर बताना होता है कि इसकी 2 वैक्सीन चलती हैं वर्ल्ड वाइड और एवरीथिंग। सो वो आगे हम देखते जाएंगे। तो बाकी फिर हम आगे आते हैं मेथड सेक्शन पे। तो मेथड सेक्शन का एक ब्लूप्रिंट होता है आपकी स्टडी के लिए। इसमें आप स्टडी का टाइप, सैंपल कितना था, सैंपल साइज की हमने कितने लोग लिए थे, 100 लोगों से हमने स्टडी चालू की थी या 500 लोग लिए थे हमने स्टडी के लिए, ठीक है, सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी क्या थी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को जैसे हमने 3 ग्रुप बनाए थे, एक को हम 5 mg दे रहे हैं ड्रग, दूसरे को हम प्रॉपर 50 mg ड्रग देते हैं, तीसरे को हम प्लेसिबो देते हैं। तो हाउ आर स्टडी वाज कंडक्टेड, तो सैंपल साइज कितना था, स्टडी का टाइप क्या था, डाटा कलेक्शन कैसे किया हमने, कि हमने कंप्यूटराइज फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया था या फिर हमने पेपर बाय हिस्ट्री टेकिंग डाटा कलेक्ट किया, जैसे भी हमने डाटा कलेक्ट किया। तो क्या क्या टूल्स यूज हुए, जोटेरो इज अ टूल दैट वी यूज। तो और एथिकल अप्रूवल मिला या नहीं मिला हमें, क्योंकि अगर वी डिड एनीथिंग, अगर हम ड्रग रिलेटेड स्टडी करते हैं तो वी हैव टू गेट अ एफडीए अप्रूवल फॉर दैट। तो हमें एथिकल अप्रूवल मिला था या नहीं मिला था, या हमने एनिमल में स्टडी की फिर हम प्रोसीड किए ह्यूमन स्टडीज में, कौन से फेज में थी स्टडी, फेज 0, 1, 2, 3, 4। सो तो यहाँ पे मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, मेथड सेक्शन में डायग्राम्स ऐड करते हैं। वो यहाँ पे डायग्राम ऐड करना बहुत इजी होता है, ठीक है। अब तीसरा है हमारा क्या, रिजल्ट सेक्शन। तो रिजल्ट मतलब फैक्ट्स और डाटा बस डिस्क्राइब करना होता है। यहाँ पे टेबल्स और फिगर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन नहीं करना है हमें, कि सिर्फ बताइए कि डाटा क्या कह रहा है। जैसे कि बूस्टर कवरेज परसेंटेज या एफिकेसी रेट निकाल के हमने बता दिया कि अच्छा ये है, अगर ये अगर बूस्टर लिया जाए तो डिप्थीरिया से बचने के चांसेस इतने बढ़ जाएंगे। अपना ओपिनियन नहीं देना है कि बूस्टर लेना चाहिए। तो इस सेक्शन में सिर्फ सच बोलना है बिना ओपिनियन के, ठीक है, कि हमने ये किया था उससे ये चीज अचीव हुई है, बस। तो दैट्स व्हाट रिजल्ट सेक्शन इज ऑल अबाउट। डिस्क्राइब करते हैं ट्रेंड्स को, आउटलाइनर्स को, और इसके बाद आते हैं हम डिस्कशन सेक्शन पे। तो डिस्कशन में 4 पार्ट्स होते हैं। समरी ऑफ की फाइंडिंग, तो बिना रिपीट किए हम एक बार समरी दे देते हैं सारी चीजों की, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन की, ये रिजल्ट का मतलब क्या निकला, ठीक है। अ, फिर लिमिटेशंस बताते हैं हम कि क्या चीजें कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते। कि अगर जैसे हमने डिप्थीरिया की वैक्सीन दी, तो कुछ लोगों 25% लोगों पे हमें एफिकेसी देखने मिली, तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन में आ गया कि ये रिजल्ट का क्या मतलब निकला। क्या चीजें कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि 75% को डिप्थीरिया, इन 25% को डिप्थीरिया कभी नहीं होगा, ये चीज हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते। हो सकता है ओवर द टाइम बूस्टर वैक्सीन भी फेड करे, है ना, फिर उसके बाद इन्हें डिप्थीरिया हो सकता है। तो फिर रिकमेंडेशन, अब आगे क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये सेक्शन लिंक करता है फैक्ट को कंक्लूजन से जोड़ता है, ओके। तो दिस इज व्हाट द 4 सेक्शंस आर अबाउट। तो नाउ वी विल get to the linear construction of ideas, that how how do we think about scientific writing, और how do we think कि एक अच्छी रिसर्च राइटिंग के लिए लीनियर आइडिया फ्लो कैसा होना चाहिए। कि आप अगर कोई भी आइडिया सोच रहे हैं तो उस आइडिया के सभी सेक्शंस में दिखना चाहिए, कि इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक के। अगर जैसे बूस्टर का आइडिया लिया है तो इंट्रो में गैप बताएं, मेथड में डाटा कलेक्ट करें, रिजल्ट में फाइंडिंग शो करें, ठीक है, और डिस्कशन में इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर दें। तो देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ आइडिया, ठीक है। और अब देखो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स जो था,
तो यही आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स मेजोरिटी यही है कि जो भी आइडिया है उसका फ्लो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक लॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए हर आइडिया का मैन्युस्क्रिप्ट पे। ठीक है। तो अगर एक पेपर लो उसमें रोज और कॉलम्स, इतना तो आप लोग को पता होगा रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो रोज में यू कैन पुट डिफरेंट आइडियाज एंड कॉलम में पेपर के सेक्शन होते हैं। हर आइडिया फ्लो करता है इंट्रो से लेकर रिकमेंडेशंस तक के। तो यू कैन रैंक योर आइडियाज 1 2 3 एंड फ्रॉम देयर यू कैन जज कि तुम, जैसे तुम्हें एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी है तो तुम उसके लिए 3 से 4 आइडियाज, 4 आइडिया में पहले 3 से 4 आइडिया अपने दिमाग में सोचोगे और उनमें देख उनको रैंक वाइज रखोगे कि कौन सा आइडिया में फ्लो ज्यादा अच्छा है, कौन सा आइडिया में नॉलेज ट्रांसफर ज्यादा अच्छी हो रही है, या कौन सा आइडिया है जो सारा आईएमआरडी फॉलो करते हुए सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को आगे लेके जा रहा है, मतलब नॉलेज बढ़ा रहा है। नहीं तो ठीक है। सो यूजेस ऑफ आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स देखते हैं। तो मैट्रिक्स दो तरह से यूज किया जा सकता है। नया पेपर लिखने के लिए प्लानिंग स्टेज में, या पुराना ड्राफ्ट अगर मैसी हो तो उसको फिक्स करने के लिए भी हम आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कोविड 19 के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई थी, कोविड 19 वैक्सीन के ऊपर। बट रिसेंटली जब अभी कोविड 19 के साइड इफेक्ट्स आए थे, सो लोगों में फिर से एक पैनिक सिचुएशन हो गई थी। ठीक है। तो अ, ये तो है ही कि जो भी वैक्सीन है उसके साइड इफेक्ट्स रहेंगे ही कहीं ना कहीं। ठीक है। बट 1 लाख में 2 साइड इफेक्ट होना या 10 लाख के पॉपुलेशन में 5 साइड इफेक्ट होना, ये बहुत नॉर्मल चीज है। तो ये सारी चीजों को अभी फिर उसके ऊपर भी एक पेपर लिखा गया था। तो दैट वाज द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड यूज ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स की पुराना ड्राफ्ट जो है वो अगर मैसी हो गया तो उसको फिक्स करने के लिए हम रीयूज एंड रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें सिर्फ जो पहला पेपर था उसमें सिर्फ साइड इफेक्ट्स जो थे कि एरिथमिया से हार्ट अटैक आ सकता है। तो दैट वाज ओनली साइड इफेक्ट। अब जो नया पेपर लिखा गया तो नए पेपर में दिस वाज मेड द हेडिंग, और पुराने पेपर को ही यूज करके रीयूज करके रीऑर्गेनाइज करके न्यू पेपर वाज जनरेटेड एंड peer review was done and the paper was published. तो आप अपने को ऑथर के साथ आइडिया लिस्ट जनरेट कर सकते हो, मैट्रिक्स फिल कर सकते हो। मेजोरिटी क्या होता है कि जो भी ये साइंटिफिक राइटिंग है, रिसर्च राइटिंग है, इट्स नॉट डन बाय अ सिंगल पर्सन, इट्स डन बाय अ मेजोरिटी, डन बाय ग्रुप। 20 से 30 लोगों का ग्रुप होता है। तो उसमें कुछ लोग स्टडी कंडक्ट करते हैं, कुछ लोग क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए सब्जेक्ट्स लाते हैं, कुछ लोग सब्जेक्ट का इंटरव्यू करते हैं, कुछ लोगों का और रेगुलेटरी कंप्लायंस पास करना कुछ लोगों का काम होता है। कुछ लोगों का काम होता है कि वो पेपर लिख रहे हैं, कुछ लोगों का काम होता है उसे पब्लिश करवाना। बहुत सारे पब्लिकेशन सेंटर्स होते हैं जो आपको पैसा देते हैं। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, विल नॉट गेट इनटू इट, टाइम भी नहीं है अपने पास उतना। तो फिर लिखना काफी इजी हो जाता है कि आपके पास सिर्फ एक ही काम बचता है कि आपको एक आइडिया सोचना है और उस पर आपको इंट्रोडक्शन, मेथड, डिस्कशन, सारा कुछ आपको एक फ्लो में लिखना है। और फिर उसको आप पहले, पब्लिश नहीं होता, पबमेड या रिसर्च हब करके 2 3 साइट्स हैं जहाँ पे आप पीयर रिव्यू के लिए डालते हैं, वहां पे आप जाएंगे। वहां पे फिर टीम कोलैबोरेशंस होती हैं, ऑथर्स, मेंटर्स, एडिटर्स सब देखते हैं आपका पेपर, रिव्यू करते हैं। आपको एक बताएंगे कि आपके पेपर में क्या क्या चीजें, प्रोज और कॉन्स क्या है आपके पेपर के, आपके पेपर में क्या क्या चीजें अच्छी करी जा सकती हैं, क्या क्या चीजें हटाई जा सकती हैं, क्या क्या चीजें एडिट करी जा सकती हैं, डाटा को कैसे सुधारा जा सकता है, और ये सारी चीजें। तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। अब बेनिफिट्स क्या है आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स को यूज करने के। तो हर सेक्शन में प्रॉपर कंटेंट होता है, रिपीटेशन और कंफ्यूजन अवॉइड होता है ना। को ऑथर्स के बीच में क्लियरिटी रहती है। और एक सेकंड, हाँ, बेनिफिट्स ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स, सॉरी वो स्लाइड चेंज नहीं हुई थी। सो मैं फिर से बता देता हूँ बेनिफिट्स क्या है। तो
हर सेक्शन में द कंटेंट इज प्रॉपर, सो स्ट्रक्चर और लॉजिकल फ्लो रहता है कंटेंट में, कोई भी वो नहीं रहता। रिपीटेशन और कंफ्यूजन जो है वो अवॉइड करते हैं हम, जैसे वही डुप्लीकेशन एंड ओमिशन। ओके, फिर उसके बाद जो को ऑथर्स के बीच में क्लियरिटी रहती है, ठीक है। अब मेजोरिटी होता क्या है कि ए, जैसे आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स जो है, तो ग्लोबली इट इज एक्सेप्टेड ना। तो हो सकता है कि दो टाइम में इंडिया में कोई रिसर्च चल रही है और वही रिसर्च चाइना में या जापान में या यूएस में कहीं चल रही है, सेम रिसर्च और ऑन सेम पैरामीटर्स, ठीक है। कि दोनों ही कोविड 19 की वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया और चाइना अगर दोनों ही वैक्सीन का फॉर्मूला नहीं शेयर करेंगे, तो दैट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू रिच टू द कंक्लूजन, या वैक्सीन डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर चाइना ने कुछ डेवलप किया, उसने शेयर कर दिया, फिर इंडिया वहीं से काम चालू कर सकता है टू इम्प्रूव द फॉर्मूला, या जो वैक्सीन है या जो फॉर्मूला है उसको इम्प्रूव करके इंडिया अपना पेपर पब्लिश कर देगा। तो उससे वर्ल्ड वाइड वो पेपर कोई भी एक्सेस कर सकता है, और फिर उसके बाद वहां से कोई भी उसको डेवलप कर सकता है। तो दैट बिकम्स क्वाइट इजी। तो उसी को पीयर रिव्यू कहते हैं, मतलब पीयर टू पीयर शेयरिंग, पीयर टू पीयर रिव्यू सिस्टम वही होता है कि तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो पीयर टू पीयर रिव्यू और पीयर टू पीयर शेयरिंग बहुत आसान हो जाती है उससे, ठीक है। फाइनल थॉट्स देख लेते हैं एक बार कि क्या है हमारे साइंटिफिक राइटिंग जो है। वो कुछ नहीं है कि स्टोरी टेलिंग जैसे ही है। अगर आप मेडिकल राइटिंग का कोर्स भी करते हो, फिर उसके बाद भी आप इसको परस्यू कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें डाटा जो है वो लॉजिकली फ्लो करता है, एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है इसमें, बस, ठीक है। मेडिकल राइटिंग में मेजोरिटी ये होता है कि यू कैन राइट एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन, बट उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं भी रहेगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अ, वो किसी साइंटिफिक राइटिंग या रिसर्च के लिए नहीं यूज होगा, ठीक है। वो सिर्फ नॉलेज बेसिस पे यूज होता है। तो अगर वो आपको 30% 40% नॉलेज भी दे रहा है तो भी काम चल जाएगा। बट यहाँ पे मैक्सिमम नॉलेज शेयरिंग ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हमें कंटेंट ऐसा लिखना होता है कि मैक्स टू मैक्स नॉलेज जो है वो पार्ट ए से पार्ट बी शेयर हो टू योर राइटिंग पेपर और रिसर्च पेपर। सो इसके लिए थोड़ा सा मेडिकल राइटिंग अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल परस्यू कर सकते हैं। और तो बैक टू आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स जो है हेल्प करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड राइटिंग अ मीनिंगफुल पेपर, चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस हो। ये जो है ये एक मस्ट हैव टूल है। ये आपको हर जगह प्लान काम आएगा, प्लानिंग से लेके डायग्नोस्टिक तक के सारी चीजें करने में ये आपको बहुत काम आएगा। तो ये तो होना जरूरी है। ओके, कोई अगर क्वेश्चंस हो आपके, या फिर आपको आपको कुछ बताना हो या फिर कुछ पूछना हो तो ओपन है। बाकी ठीक है, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स ही मतलब इतना ही मैंने प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है वो काफी अलग हो जाएगा टॉपिक, फिर अगर मैन्युस्क्रिप्ट में और जाएंगे तो दिस इज इट। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो कि ये कोर्स कैसे करना है, कहाँ से परस्यू करना है या क्या है, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प। बाकी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Participants, if you have any doubts, you can ask sir right now. यस प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। And I hope you are able to access your mic as well, or even the chat box if you want to type your questions.
someone is typing. ओके, तो प्लेसिबो डोज कली देखो क्या होता है कि कई कई बार क्या होता है ना कि इंसान बीमार नहीं होता है, ठीक है, बट साइकोलॉजिकली उसको लगता है कि ही इज इल, ठीक है। बहुत कम केसेस है, 5% केस में ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकली, क्योंकि माइंड इज वेरी स्ट्रांग, तो माइंड कन्वे कर लेता है कि तुम बीमार हो। तो प्लेसिबो क्या होता है कि इट्स जस्ट लाइक, जैसे दवाई की जगह सिर्फ मीठी गोली दे दी जाती है पेशेंट को कि, तो पेशेंट सिर्फ एक भ्रम में रहता है कि ही इज कंज्यूमिंग द मेडिसिन, बट दैट्स नॉट द मेडिसिन। सो द प्लेसिबो इफेक्ट इज, वी आर नॉट गिविंग द एक्चुअल मेडिसिन टू द पेशेंट, but some of the patient in the group starts recovering. So the that's how placebo works. So हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि मतलब लोगों को पता ना चले कि कैसे, मतलब किनको दवाई दी जा रही है, किनको नहीं दी जा रही है। तो वी मेक टू ग्रुप्स, ग्रुप ए ग्रुप बी। तो ग्रुप बी को हम प्लेसिबो दे दिया, ग्रुप ए को हम दवाई दे रहे हैं। सो दैट्स हाउ वी आर डिस्क्रीट अबाउट एवरीथिंग। I hope I was able to help you. Okay, Neha, I am thinking of review writing on cystic fibrosis disease distribution and diagnosis across various continent. I am currently a BSc student. Please guide. ओके नेहा, तो तुम बिल्कुल बस तुम्हें कुछ नहीं, हेल्थ केयर इन साइंटिफिक राइटिंग का एक कोर्स होता है, मैं तुम्हें बता दूंगा। सो यू कैन बिल्कुल तुम वो कोर्स परस्यू करने के बाद, 2-3 पेपर किसी के साथ रिव्यू राइटिंग करने के बाद जरूर इस टॉपिक पे तुम लिख सकती हो। डायरेक्टली तुम इस टॉपिक पे नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, इस टॉपिक पे अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारा मन है, तो धीरे धीरे तुम जा सकती हो, बिल्कुल आसानी से जा सकती हो। ICMR NIECR करके दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके थ्रू ये डिप्लोमा कोर्स होता है। सो उनसे तुम बिल्कुल बात करके, मतलब वहां से मैं आई गाइड यू कि वहां पे कैसे यू हैव टू सेंड अ ईमेल और एप्लीकेशन लेटर, एंड देन दैट्स हाउ यू get accepted, and then how what you have to do कि you have to be a scientific writer in healthcare research. So बिल्कुल तुम प्रोसीड कर सकती हो अपने फेवरेट टॉपिक पे, कोई दिक्कत नहीं है। और BSc बैकग्राउंड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकती हो तुम। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकेश, गुड इवनिंग सर, लोकेश हियर। कैन we use visual effects and graphical summaries for the impact, and what are the tools we use to create them? ओके लोकेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, विजुअल समरीज और वो भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो मैंने बताया ना, प्रोडक्ट होते हैं मेन्यूस्क्रिप्ट के, तो टेबल्स और फिगर्स होते हैं, वो मेजोरिटी हम यूज करते हैं। ठीक है, आउटलाइन में हम स्लाइड्स और पोस्टर्स यूज करते हैं, है ना। और बहुत सारे टूल्स होते हैं यार, जैसे कि एंड नोट हो गया, तुमने एंड नोट सुना होगा क्योंकि एंड नोट काफी कॉमन है। लेकिन जैसे फिर और आगे जाते जाओगे तो मेंडली करके एक होता है, जोटेरो होता है। तो कंपोनेंट ऑफ जोटेरो, बिबिलोग्राफी के लिए ग्रुप लाइब्रेरी होती हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। विजुअल हम इसलिए कम यूज करते हैं, ज्यादातर जो साइंटिफिक पेपर तुम देखोगे उसमें विजुअल चीजें कम रहेगी, क्योंकि विजुअल चीजें ना हमको लिमिट कर देती हैं थोड़ी सी, है ना। जैसे हम राइटिंग में अगर हम 100 चीजें लिख दे रहे हैं, तो उन 100 चीजों का डायग्राम बनाने के लिए हम 100 फैक्टर्स नहीं ला सकते ना। एक डायग्राम में मेजोरिटी ये होता है कि आपके पास, अगर आप एक सर्कल बना रहे हैं तो उसको आप 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तभी, तब तक कि वो आपको समझ आएगा। जहां पर उसको 12 पार्ट में, 15 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, तो ना वो विजुअल प्रेजेंटेशन में अच्छा लगेगा, ना उसमें लिखने में जगह रहेगी। तो वो बहुत ज्यादा सही नहीं लगेगा ना लिखने में। तो इसलिए हम वैसी चीजें यूज नहीं करते हैं। वैसे विजुअल्स में बहुत सारी चीजें यूज होती है, ग्राफ्स यूज होते हैं, जैसे कि पाई ग्राफ होता है, वर्टिकल बार ग्राफ होता है हमारा, ठीक है, लाइन ग्राफ होता है, कंपोनेंट बार ग्राफ होता है। बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं हमारे पास जो हम यूज करते हैं, टेबल्स यूज करते हैं। तो होती हैं चीजें यूज। ठीक है लोकेश।
Okay, Samrat sir, if a person wants to get scientific writing work role as a freelancer, which is the best site for searching? तो यार लिंक्डइन इज द बेस्ट साइट आई थिंक। लिंक्डइन से अच्छी कोई साइट है नहीं साइंटिफिक राइटिंग देखने के लिए। बाकी अपवर्क और फ्रीलांसर डॉट कॉम और दो जगह हैं जहाँ पे लोग दिख जाते हैं। सो हम वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी साइंटिफिक राइटिंग के लिए। बट अपवर्क और फ्रीलांस अपवर्क जो है वो आपको महीने के कुछ फ्री कनेक्ट्स प्रोवाइड करता है। एंड एवरी टाइम यू रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन अपॉर्चुनिटी आपके कुछ कनेक्ट खर्च होते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। लिंक्डइन में ये है, लिंक्डइन इज फ्री। आप बड़े से बड़े लोग भी लिंक्डइन यूज करते ही हैं। तो आप लिंक्डइन में थोड़ा एक्टिव रहिए। लिंक्डइन के थ्रू आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। अगर साइंटिफिक राइटिंग या रिसर्च राइटिंग में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि कोई भी पेपर पब्लिश करता है। एंड ऑल्सो समृत रिसर्च हब इज अ प्लेस वेयर यू कैन गेट टू नो मैनी पीपल जो पब्लिश करते रहते हैं, है ना। रिसर्च हब में सारे पेपर्स डलते हैं तो उसमें सारे लोगों के नाम आते हैं कि कौन कौन पब्लिश कर रहा है, क्या क्या पब्लिश कर रहा है। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो ईयर राउंड चीजें पब्लिश करवाते हैं। तो दे हैव अ पब्लिकेशन हाउस पब्लिकेशन। तो दे आर पब्लिशर्स। तो वो पब्लिशर जो होते हैं वो सारा कुछ काम करते हैं, मतलब वो सारा पेपर पब्लिश करते हैं। तो अगर आप उनसे कांटेक्ट में आ जाएंगे और आपके पास कोई पेपर है या कोई आइडिया है या उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो वो बिल्कुल आपको बताएंगे। ठीक है। रिसर्च हब, लिंक्डइन एंड अपवर्क फ्रीलांसर, चार साइट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो नेहा के क्वेश्चन पे आता है। रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू कनेक्ट टू यू फॉर गाइडेंस, प्लीज शेयर योर ईमेल। ओके नेहा, लिंक्डइन पे अगर आप दिव्यांशु मिश्रा सर्च करेंगी या प्रतिभा मैम से भी आप मेरा कांटेक्ट ले सकती हैं। या माय ईमेल एड्रेस इज दिव्यांशु मिश्रा 99@gmail.com। so I'll just write it in chat here so you can email me from here only. Okay. So Lokesh, what is the best way to add reference, which is the complicated part of scientific writing? ओके लोकेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन यार। लेकिन मैं बस इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि वो थोड़ा सा ना ज्यादा ट्रिकी हो जाता, लेकिन अब तूने पूछा है तो मैं बिल्कुल तुझे बताऊंगा ये बात कि देखो रेफरेंसेस कैसे यूज करते हैं। तो रेफरेंसिंग के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है जोटेरो। इसको रेफरेंस मैनेजमेंट टूल बोलते हैं अपन, है ना। सिंपल होता है, देखो क्या काम होता है ना इस टूल का कि ये जो भी रेफरेंसेस है उनको कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके रखता है ना। ये हम लोग को साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी दो चीजें होती हैं, तो ये चीजें भी जनरेट करने में हेल्प करता है। और जो भी रेफरेंसिंग स्टाइल है इसको सूटेबल पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट होता है कि हर पब्लिकेशन का अपना अपना ना एक रिक्वायर्ड डिजाइन होता है कि उनको उसी फॉर्मेट में, ये आईएमआरडी स्ट्रक्चर ही होता है इसको, वो इसी चीज को अलग अलग फॉर्मेट में मांगते हैं। ठीक है। तो इसी को हम पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो ये जो जोटेरो हमारा रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है ये हमको इन्हीं सब चीजों में हेल्प करता है कि साइटेशन जनरेट हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, जो तूने पूछा कि कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो है रेफरेंस ऐड करने का, तो ये ऑर्गेनाइजिंग एंड कलेक्टिंग रेफरेंस दोनों में हेल्प करता है लोकेश। ये हमको एंड नोट और मेंटली दो टूल और हैं लेकिन वो कम यूज होते हैं क्योंकि जोटेरो आजकल के काफी इजी टू यूज है और फिर सब में यूज हो जाता है। तो यार जोटेरो 5.0 और जोटेरो कनेक्टर जो दो चीजें आती हैं तो यही मेजोरिटी लोग यूज करते हैं। ऑल्सो सर, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दैट मेक एडिटर्स रिजेक्ट अ मैन्यूस्क्रिप्ट? तो यार मैन्यूस्क्रिप्ट रिजेक्ट बहुत सारे कारणों से होती है। जो सबसे मेन कारण है वो है कि रिपीटेबिलिटी होती है उसमें। ठीक है कि बहुत सारी चीजें बार बार अगर रिपीट हो रही हैं, ठीक है, या वैसा ही सेम पेपर जनरेट हो चुका है तो रिजेक्ट हो जाता है। या फॉर्मेटिंग डिजाइन होते हैं बहुत सारे। जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्मेटिंग डिजाइन जो मैन्यूस्क्रिप्ट में यूज होता है वो एपीए स्टाइलिंग होता है। ठीक है। तो अगर वो फॉलो नहीं हुआ है तो हो जाता है। ठीक है। तो भी रिजेक्ट होता है। तो और तो यार और बाकी रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण हैं वैसे। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ पीयर रिव्यू सिस्टम।
कि बार बार चीजों को हम रिव्यू करते हैं कि हम एक पेपर को पब्लिश करने से कम 10 बार रिव्यूइंग साइट्स पे डालते हैं। जैसे रिसर्च हब इज अ रिव्यूइंग साइट, तो वहां पे एक पेपर 8 से 10 बार चक्कर काटता है। वो जाएगा, फिर वहां पे लोग उस पर कमेंट्स करेंगे कि अच्छा इसमें ये कमियां हैं, ये चीजें ठीक है। फिर वो वापस आता है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं टॉप टू बॉटम, और फिर तो दैट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, वो चलता रहता है। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर, शुड वी मेक और कंटेंट अकॉर्डिंग टू पब्लिशर्स नीड, और शुड वी एडिट इट आफ्टरवर्ड्स? तो और शुड वी स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स? तो देखो यार, मेजोरिटी क्या होता है ना कि आपको जो जो भी साइंटिफिक राइटिंग है, तो या तो वो किसी क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर आप लिख रहे होगे, ठीक है, या आप खुद से तो बिल्कुल चालू करोगे नहीं ना। आपको कुछ ना कुछ डाटा कहीं ना कहीं से आप ऑब्टेन करोगे। कोई आपको कुछ डाटा देगा कि अच्छा ये डाटाज हैं, इस पे आपको लिखना है, ये रिसर्च हुई थी, ये ऐसा हुआ था। वो आपको एक अ, बड़ा डाटा देगा, 500-800 पेज का, उसको आपको कंपाइल करके 5-10 पेज में एक सिस्टम में लिखना है, ठीक है। तो वो जो डाटा देगा ना, तो फिर आपको उसकी सुननी पड़ेगी कि अच्छा हाँ ठीक है। बहुत सारी जगह मैंने आपको बताया ना, जैसे स्टाइल्स होते हैं लिखने के, तो एपीए स्टाइलिंग सिस्टम होता है, तो उसी पे ज्यादातर चीजें लिखी जाती है, क्योंकि मेजोरिटी यही है कि आजकल के एपीए सिस्टम ही फॉलो करते हैं। यूएस यूके में पहले अलग अलग सिस्टम फॉलो होते थे, बट रिसेंट 4-5 साल पहले से अब वो भी सेम स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग डिजाइन या स्टडी सेटिंग्स या स्टडी डिजाइन, सारे वो सेम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू फॉर योर आंसर्स, थैंक यू रिव्यूज। एक सेकेंड ध्रुविका, व्हाट आर यू आस्किंग सर, शुड मैं कंटेंट? हाँ, तो पब्लिशर के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना चाहिए मेजोरिटी, क्योंकि पैसे वहीं से आते हैं। एंड शुड वी स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स? तो यार, अगर आप पहले एक बार आप पहले उस चीज को अगर आप समझ लोगे या सीख लोगे, तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। सो मेरे हिसाब से आप पहले एक बार कोर्स कर लो, या फिर या कोर्स कर लो, या मेडिकल राइटिंग थोड़ी सी सीख लो। तो उससे आपको काफी आसान हो जाएगा आपका फ्लो बनना, आपके आइडियाज प्रोसेसिंग होना। क्योंकि आप जब कोर्स करोगे तो आप सीखोगे कि कैसे आपको मतलब आप बहुत सारे रिसर्च पेपर देखोगे, आप खुद से पढ़ना सीख जाओगे कि अच्छा ऐसे रिसर्च पेपर को कैसे देखा जाता है, कौन कौन से सेक्शंस को कहाँ कहाँ से पढ़ना है। सो वहां से आपका एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होने लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके लिए आर्टिकल्स लिखना काफी आसान हो जाएगा। What are the qualities of good research paper and review articles so that it can be accepted by high impact factor generals? तो यार देखो, जनरल में यही होता है कि मेजोरिटी तो यही होता है कि आपको मतलब जो है ना कि बेसिक, बहुत बेसिक चीजें ना, बहुत जो बड़े बड़े जनरल प्रिंट्स करते हैं ना, वो बहुत बेसिक चीजें प्रिंट करते हैं। वो अगर आप बहुत बड़ी सी रिसर्च कर दिया आपने, है ना, उसको बिल्कुल अलग फॉर्मेटिंग डिजाइन में बिल्कुल अलग से बहुत अच्छे तरीके से कर दिया, वो पब्लिश ही नहीं होगी। और किसी ने बिल्कुल छोटी सी रिसर्च करी होगी बिल्कुल अ, आसानी सी, तो वो पब्लिश हो जाएगी। कि उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि नॉलेज का फ्लो मैक्सिमम होना चाहिए। कि अगर वो पेपर, देखिए मेडिकल में इतनी चीजें हैं कि अगर मैं 5 मिनट के लिए कोई पेपर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मुझे उससे 100% रिटेंशन रह रही है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी, ठीक है। अगर मैं एक 10 पेज का पेपर पढ़ रहा हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें, विजुअली बहुत अच्छा है, वो पेपर बहुत अपीलिंग है, देख के लग रहा है कि यार ये पेपर बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरा नॉलेज उससे, रिटेंशन रेट उसका 70% या 50% है, तो फिर वो काम का नहीं है ना। क्योंकि एट लास्ट तो यही रहेगा ना कि वो पेपर तो वहीं रह जाएगा, जो नॉलेज ट्रांसफर हुई है वो मेन होना चाहिए। तो जो ये हाई इम्पैक्ट फैक्टर है, तो ये यही है कि नॉलेज ज्यादा ट्रांसफर होनी चाहिए, मोहम्मद। तो दैट्स एवरीथिंग, नॉलेज ट्रांसफर सबसे जरूरी है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? अभी भी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो अगर कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछो, आई एम हैप्पी टू हेल्प।
Okay, no more questions. Participants will wait for a few more minutes before we conclude the session. So if you have any more doubts, you can ask her right now. What are the career options in? Okay मैम, एक और डाउट आया है तो मैं बता देता हूँ. नेहा. ओके नेहा, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस इन साइंटिफिक राइटिंग? तो यार साइंटिफिक राइटिंग के बाद बहुत सारी चीजें आपके लिए खुल जाती है, जैसे कि ये फेलोशिप कर सकते हो आप. साइंटिफिक राइटिंग में पीजी डिग्रीज होती हैं, वो कर सकते हो. पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है साइंटिफिक राइटिंग में, वो कर सकते हो. और फिर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्योंकि मेजोरिटी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी, फार्मास्यूटिकल या न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, तो आजकल न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल करती है. तो वहां पे भी बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए कि साइंटिफिक राइटिंग जो है वहां पे बहुत चल सकती है. बाकी ठीक है, आप थोड़ा खुद से जब आप रिसर्च करोगे ना, तो आपको और चार चीजें पता चलेगी, आप और थोड़े से क्यूरियस होगे, आपको और मतलब चीजें दिखेंगी कि अच्छा मेडिकल राइटिंग में साइंटिफिक राइटिंग में क्या अंतर है, और क्या मत पार्ट है. साइंटिफिक राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल राइटिंग, ओके, अलग कुछ नहीं है. बट जैसे जैसे आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, आप और चीजें सीखोगे. तो कैरियर ऑप्शंस बहुत हैं. बस आजकल के तो काफी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही काफी ज्यादा ऑप्शंस खुल गए हैं. तो बिल्कुल, अगर आप कर लेते हो तो आप खाली तो नहीं रहोगे, आप बिजी रहोगे. एनी मोर क्वेश्चंस? तो मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो बिल्कुल मेरी ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर दीजिएगा. हो सकता है मैं एक आध दिन में रिप्लाई करूं, लेकिन मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा, सो डोंट वरी. ओके नेहा, हैप्पी टू हेल्प. प्लीज. So I think there are no more doubts now, Dr. Divyanshu. Can we यस. conclude the session? यस मैम. All right, so as we conclude the 50th session of Beyond Research, where curiosity meets conversation, I would like to extend our sincere gratitude to Dr. Divyanshu Mishra for sharing his valuable insights and experiences with us today. Dr. Mishra's expertise as a tutor, AI trainer, and prompt writer, along with his innovative approach and strong background in scientific writing, has provided us with a fresh perspective on the importance of adaptability, teamwork, and continuous learning in today's multidisciplinary environment. So, thank you, Dr. Mishra, for your engaging talk and practical advice. We also appreciate the active participation and thoughtful questions from all the attendees, which made this session truly interactive and enriching. We look forward to seeing you all at our next session. Until then, stay curious and keep exploring new ideas. Thank you so much. So much ma'am, there was someone asking for recording, so Adit was asking for recording. तो अगर आप प्रोवाइड कर देते मैम तो बहुत अच्छा होता. Yes, we'll update on that later on to all the participants. ठीक है. All right. Thank you so much, Dr. Divyanshu, and thank you all the participants for joining us today. थैंक यू मैम.